Assalamualaikum. The topic which we are going to discuss today is the pleura. But before going to the topic, the first thing which I am going to tell you is about the thoracic cavity. As we have discussed in the previous video that diaphragm divides the upper part of the skeleton into two cavities. The upper part is the thoracic cavity while the lower part is the abdominal cavity. Basically, अब हमने देखना है कि what are the divisions of the thoracic cavity. There are basically three compartments of thoracic cavity. The two are pulmonary compartments and the central portion in which the organs other than the lungs lie is the mediastinum. If we go on further detail in the mediastinum, we will find out that mediastinum are basically of two types, the superior mediastinum and the inferior mediastinum. The inferior mediastinum is further divided into the anterior mediastinum, middle mediastinum, and the posterior mediastinum. This is basically the sternum, this is the vertebral column, and this is the space or the compartment of the thoracic cavity which lies in the central part here. So this is known as the mediastinum. Now we are going to discuss what is the pleura. The serous membrane which is lined by the mesothelium is referred to as a pleura or the pleural sac. This is the normal structure of lung. It is basically of two types. One is the visceral pleura which adheres to that of the lungs, and the other one is the parietal pleura which adheres to that of the thoracic wall. The one is the visceral and the other one is the parietal, and the space which is present between these two pleuras is referred to as the pleural cavity. The next thing which we are going to discuss is in detail is the parietal pleura. It lines the pulmonary cavity. As you can all see here in this diagram, these are the pink structure is the lung. This is the collapsed one. It is the inflated one. The orange outline here is referred to as the visceral pleura, while the purple outline here is referred to as the parietal pleura. These are the different parts of the parietal pleura. So basically the parietal pleura, as you can all see here, lines the thoracic wall. This is the thoracic wall. It lines the thoracic wall. Inferiorly, diaphragm, and in center it lines the depth of the mediastinum. Now we will discuss each part of the parietal pleura in detail. The first part which we are going to discuss is the costal part. So basically the costal part is separated from the thoracic wall through the layer of loose the loose connective tissue which is known as the endothoracic fascia. The importance of this fascia is that कि जब हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं तो अगर हमें कोस्टल पार्ट को थोरेसिक वॉल से सेपरेट करना हो तो हमारे पास ये क्लीवेज प्लेन ड्यूरिंग सर्जरी हमारे पास प्रिपेयर होता है. मोर ओवर कि हमारे पास ये इंट्राथोरेसिक एक्सेस टू द एक्स्ट्रा पल्मोनरी स्ट्रक्चर, मोर ओवर जो इंस्ट्रूमेंटल प्लेसमेंट हमने इंट्राथोरेसिक करनी हो विदाउट कॉन्टेमिनेटिंग द प्लूरल कैविटी, तो ये हमारे पास एंडोथोरेसिक फेशिया वो लाइन ऑफ प्लेन प्रोवाइड करता है. The next part which we are going to discuss is basically the mediastinal part. This is the mediastinum. It surrounds the lateral aspect of the mediastinum. This is the hilum of the lung, or which we also refer to as the root of the lung. At this point, it becomes continuous with that of, as you can all see, to that of the visceral pleura. Now we will discuss about the continuation of the mediastinal part. Superiorly, it becomes continuous to that of the cervical pleura. Inferiorly, it becomes continuous to that of the diaphragmatic part, and laterally it becomes continuous to that of the costal part, as you can all see here. The next part which we are going to discuss is the diaphragmatic part. This is the diaphragmatic part. This muscular structure here is known as the diaphragm, and the part of the endothoracic fascia, this dotted line which separates the diaphragmatic part of the parietal pleura from the diaphragm, is referred to as a phrenicopleural fascia. Why it is called phrenicopleural? Whenever the phrenic word comes, the first thing that should be pop up in your mind is the diaphragm, and the pleura is always related to the pleural cavities. The next part which we are going to discuss is the cervical part. It is basically the continuation of the two parts of the parietal pleura. On the medial side, it is the mediastinal pleura, and on the lateral side, it is the costal part. Superiorly, it is reinforced by the suprapleural membrane. The suprapleural membrane is also referred to as the Simpson's fascia. As you can all see here, the cervical pleura superiorly continues into the suprapleural membrane, and
This membrane as substance fascia covers the superior thoracic inlet. The attachment of the suprapleural membrane or the substance fascia is very important, which should be remembered. Superiorly, it is attached to the transverse process of the seven cervical vertebrae, and inferiorly, it is attached to the inner aspect of the first rib along with its costal cartilage. The next thing is the superior cup-like dome structure, which is formed by the cervical part, is known as the capula. The next thing is pleural reflection. इनका सिंपल हमने ओवरव्यू लेना है. डोंट गेट कंफ्यूज्ड बाय दिस कॉम्प्लेक्स डायग्राम. इट्स वेरी इजी. एक दफा अगर आपको समझ आ जाए देन यू विल नेवर फॉरगेट इन योर लाइफ. बेसिकली ये जो 3 लाइंस, यहाँ पे 4 लाइंस हैं, ये हमारे पास बॉडी में प्लेन्स होती है. द ब्लू वन इज द इंटीरियर मीडियन लाइन और द इंटीरियर मीडियन प्लेन व्हिच इज आल्सो नोन एज द स्टर्नल लाइन. दिस इज द मिड क्लेविकुलर लाइन, जो मिड पोर्शन ऑफ द क्लेविकल से हम स्ट्रेट डाउनवर्ड ड्रॉ करते हैं अप टू द लेवल ऑफ द 8th rib. This is the mid axillary line जो इंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिला के फोल्ड के बीच में रन करती है अप टू द लेवल ऑफ द 10th rib. अब हम यहाँ पे देखेंगे प्लूरल रिफ्लेक्शंस इन लाइंस के अकॉर्डिंगली क्या है. सबसे पहले जो स्टर्नम पे रिफ्लेक्शन होगी इसको स्टर्नल रिफ्लेक्शन ऑफ प्लूरा कहेंगे. जो वहाँ पे कोस्टल कार्टिलेजेस या हमारे पास रिब्स इन्वॉल्व हो जाएंगे वहाँ पे कोस्टल लाइंस ऑफ द प्लूरल रिफ्लेक्शन कह देंगे. जहाँ पे वर्टिब्रल्स इन्वॉल्व हो जाएंगे उनको वर्टिब्रल लाइंस कह देंगे. सबसे पहले वी विल डिस्कस द स्टर्नल लाइंस. स्टर्नल लाइंस ये हमारे पास स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है. स्टर्नल लाइंस इंफ्रोमीडियली स्टार्ट होती है. पोस्टीरियर टू द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट is straight along the anterior median line runs downward up to the level of the midpoint of sternal angle as you can see here. वहां से अब हमारे पास राइट और लेफ्ट स्टर्नल लाइन का जो कोर्स है ना वो डिफरेंट हो जाता है. जो राइट साइड की स्टर्नल लाइन है वो स्ट्रेट एंटीरियर मीडियन लाइन के अलोंग रन करती है अप टू द लेवल ऑफ द ज़ीफी स्टर्नल जॉइंट. From Zyphi sternal joint, it runs slightly downward from where it turns to the right to the mid clavicular line at the 8th rib. 8th rib से downward ये mid axillary line में आता है 10th rib के. From the 10th rib posterior to the 12th rib जाके इसकी coastal reflection attached हो जाती है. अब जो हमारे पास लेफ्ट साइड की sternal line है वो मिड पॉइंट ऑफ द sternal angle से runs downward करती है up to the level of the 4th coastal cartilage और the 4th rib. वहां से ये हमारे पास लेफ्ट टर्न हो जाती है टिल द लेवल ऑफ द 6th कोस्टल कार्टिलेज और ये एक शैलो नॉच बना देती है. उसके बिलो जिसका कोस्टल कोर्स है वो सिमिलर टू दैट ऑफ द राइट साइड है. कोस्टल रिफ्लेक्शन उसकी सिमिलर है. बट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो इसने शैलो नॉच बनाती है इसको हम कहते हैं बेयर एरिया ऑफ द पेरिकार्डियम, जिसमें 4th, 5th और 6th रिब्स और 5th और 6th कोस्ट इंटरकोस्टल स्पेसेस इन्वॉल्व होती है. अब इस बेयर एरिया की इंपॉर्टेंस क्या है कि इसमें हम बेसिकली पेरिकार्डियोसिंथेसिस कर सकते हैं. व्हाट इज द पेरिकार्डियोसिंथेसिस? इट इज द बेसिकली ड्रेनेज ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम द पेरिकार्डियल कैविटी. इसमें हम व्हाइट बोर्ड नीडल लेते हैं लाइक दिस वन और वो हम 5th और 6th इंटरकोस्टल स्पेस के लेवल पे नियर द स्टर्नम इंसर्ट करके पेरिकार्डियल फ्लूइड एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं अगर हमें वो चाहिए हो. दूसरे नंबर पे हमारे पास जो एंगल मोस्टली हम लेते हैं इसके लिए वो होता है इंफ्रास्टर्नल एंगल, दिस वन. इस इन एंगल की इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पे अगर हम सैंपल लेंगे पेरिकार्डियल फ्लूइड का तो वी आर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू द प्लूरा. विदाउट एंटरिंग प्लूरा हम पेरिकार्डियल फ्लूइड एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं. बट इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि वी हैव टू टेक केयर अबाउट द इंटरनल thoracic आर्टरी कि वो इंजरी ना हो. The third reflection of the pleura is the vertebral reflection. बहुत आसान है. T1 to T12 vertebrae continuous हो जाती है posteriorly. 12 vertebrae से हमारे पास laterally दोनों साइडों पे चले जाते हैं और जाके 12th rib पे जाके हमारे पास coastal cartilages के साथ ही attached हो जाते हैं. coastal part of pleura के along ही run करते हैं. The next thing which we are going to discuss is the visceral pleura. Visceral का मतलब viscera. ये हमारे पास टॉर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लंग है. It adheres to lung का मतलब ये है कि if this is the lung दिस इज द विजिटल प्लूरा जो लंग के साथ एडहियर होता है. एडहियरेंस की वजह से हमारे पास जो कैडेवर होते हैं उनमें ये सेपरेट नहीं हम कर सकते. बट पैराइटल प्लूरा इज सेपरेटेड. मोर ओवर इट इज इनसेंसिटिव टू द पेन. जो प्लूरेटिक पेन होती है वो पैराइटल प्लूरा की तरफ से होती है, विजिटल प्लूरा की तरफ से पेन नहीं होती. दिस इज द प्लूरल स्पेस एंड दिस इज द पैराइटल प्लूरा. सो विजिटल प्लूरा एडहियर्स टू दैट ऑफ द लंग. नाउ एज यू कैन ऑल सी हियर दिस इज द हाइलम ऑफ द लंग. मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि एट द हाइलम ऑफ द लंग वेरी ऑब्वियस कि विजिटल प्लूरा यहाँ पर पैराइटल प्लूरा के मीडियास्टिनल पार्ट है ये उसके साथ कंटिन्यूस हो जाता है. इफ यू वांट टू डू द डिफरेंस बिटवीन द विजिटल प्लूरा एंड द पैराइटल प्लूरा दिस टेबल इज इनफ.
ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई की अगर बात करें तो जिस तरह विजरा प्लूरा लंग से एडहेयर करता है तो इसकी नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज सिमिलर टू दैट ऑफ द लंग्स. The next topic which we are going to discuss is the pleural recess. These are basically the potential spaces where in the expiration जब हमारे पास जहाँ पे विजडल और पैराइडल प्लूरा जब हम एक्सपायर करते हैं तो वो डिस्टेंट अपार्ट कर जाते हैं. प्लूरल कैविटी में हमारे पास टू स्पेसेस होती हैं, रिसेसेस होती हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं. दैट आर द कोस्टोडायफ्रेगमेटिक रिसेस एंड कोस्टोमीडियास्टिनल रिसेस. दिस वन इज द कोस्टोडायफ्रेगमेटिक रिसेस जो कि हमारे पास ब्लू कलर में है. ये उसका इंटीरियर व्यू है. This one is the posterior view here and this is the lateral view and this is the costomediastinal recess. अगर हम इनको एनाटॉमिकली एम्फेसिस करें तो ये हमारे पास इनका अगर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर डिटेल में देखें तो दिस वन इज द कोस्टोडायफ्रेगमेटिक रिसेस जो लंग के बिल्कुल नीचे है एंड दिस वन इज द कोस्टोमीडियास्टिनल रिसेस जो कि कार्डियक नॉच के लेवल पे पड़ी हुई होती है. अब हमारे पास इन रिसेस की इंपॉर्टेंस क्या है कि हमारे पास इसमें कुछ क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अहम बातें हैं इसमें आती हैं. वो सबसे पहले ये है कि हमारे पास प्लूरल इफ्यूजन. अगर तो हमारे पास अराउंड द लंग से प्लूरल कैविटी में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाए तो दैट इज रेफर्ड टू एज अ प्लूरल इफ्यूजन. और अगर एयर हमारे पास प्लूरल कैविटी में आ जाए तो उसको हम न्यूमोथोरिक्स कहते हैं. उसका बेसिकली हमारे पास प्रोसीजर यही है कि ये हमारे पास कोस्टोडायफ्रेगमेटिक रिसेस है और इसमें हमारे पास एक्यूमुलेट हो गया फ्लूइड और एयर जिसको हम फिर प्लूरल इफ्यूजन या न्यूमोथोरिक्स कहते हैं. अब अगर हमारे पास प्लूरल कैविटी में ब्लड एक्यूमुलेट हो जाए तो दिस इज कॉल्ड हेमथोरिक्स. हाइड्रोन्यूमोथोरिक्स होता है कि जब फ्लूइड और एयर दोनों प्रेजेंट हो एंड एम्पाइमा इज द प्रेजेंस ऑफ पस इन द प्लूरल कैविटी. अब रिसेसिस की हमारे पास इंपॉर्टेंस ये है कि हम यहाँ पे प्लूरल टैप या थोरेकोसेंटेसिस इजीली कर देते हैं विदाउट इंजरिंग द प्लूरा और द लंग्स. इसमें हमने क्या करना होता है कि जो कैविटी के अंदर हमारे पास एक्यूमुलेट हुआ हुआ फ्लूइड है उसको हम एस्पायर कर लेते हैं. जो मोस्ट कॉमन साइट है इसको करने की वो एट्थ इंटरकोस्टल स्पेस है. पेशेंट इसी पोजीशन में हमारे पास सिटिंग पोजीशन में बैठा हुआ होता है कि वो हमारे पास लीन ऑन द टेबल होगा. उसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें वो ये है कि वन इज द एट्थ इंटरकोस्टल स्पेस में हम एंटर करते हैं अलोंग द मिड एक्सिलरी लाइन. द सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि जब भी नीडल इंसर्ट करनी है चेस्ट में नीडल इंसर्ट करने का तरीका ही यही है. आइदर इट इज अ थोरेकोसेंटेसिस या आप चेस्ट ट्यूब इंट्यूबेशन कर रहे हो तो ऑलवेज रिमेंबर कि रिब के अपर एज के अलोंग हम क्या कहते हैं नीडल को इंसर्ट करते हैं बिकॉज लोअर एज पे हमारे पास न्यूरोवास्कुलर बंडल पड़ा हुआ होता है, वेन, आर्टरी और नर्व जिसको हम न्यूरोवास्कुलर बंडल कहते हैं और इसकी इंजरी के चांसेस हमारे पास बहुत ज्यादा होते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.